Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture 5 of Object Oriented Software Engineering, which is based upon requirement solicitation. So before going further, let's have a slight recap of the previous lecture. In the last lecture, we discussed about ways of managing software development. The first one was communication. How to communicate effectively with the stakeholders. Second one, and there are different ways of communication. We discussed about the ways of communication. Second one was rational management. We should have a record of the background of the system. We should know which are the users, who are the users, which is the all the background of the system. That is rational management. We discussed in detail this rational management. Then we discussed about software life cycle, and the most important, configuration management, software configuration management, how we should control and monitor different versions created during the software development process. In today's lecture, we will be continuing requirements elicitation. Requirements elicitation focuses on describing the purpose of the system. Basically, requirements elicitation means requirements gathering. We have to actually gather the requirements to work further. It focuses on describing the purpose of the system. Now, the stakeholders, the client, the developers, and the users identify a problem area and define a system that addresses the problem. So, first of all, we have to identify what is our problem area, and then we will explore the problem area or domain. For example, let's say you have to make a software for civil engineering business, civil engineering. So what you have to identify, you have to first identify the client, actual client from which you have to gather requirement, from whom you have to gather your requirements. Then you will explore that solution, that problem domain to get maximum requirements or additional requirements, and then define a system that addresses the problem. Requirement specification serves as a contract between the client and the developers. As we discussed previously, that requirement specification, or we can say SRS, SRS is the basic document upon which different stakeholders are agreed. We can say that SRS or requirement specification, software requirement specification document will serve as a contract between the client and the developers. ठीक है, ताकि अगर कोई एक स्टेक होल्डर ये कहे कि ये रिक्वायरमेंट्स एक्चुअली वो नहीं है जो हमने पहले मेंशन की थी, सो हमारे पास एक प्रूफ होगा बाय लुकिंग एट द SRS. हम सब स्टेक होल्डर्स एग्रीड होंगे कि यही वो रिक्वायरमेंट्स हैं जिन पर हमने काम करना है फर्दर. नेक्स्ट इज द स्पेसिफिकेशन एंड एनालिसिस मॉडल. अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, एनालिसिस मॉडल और स्पेसिफिकेशन, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें, बेसिकली दोनों वेज हैं. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद हम स्पेसिफिकेशन पे भी जाते हैं और एनालिसिस मॉडल पे भी जाते हैं. रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के बाद स्पेसिफिकेशन की फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनालिसिस मॉडल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को. सो इनकी हम डिफरेंसेस और साथ में इनकी सिमिलैरिटीज देख लेते हैं. स्पेसिफिकेशन और एनालिसिस मॉडल में डिफरेंसेस क्या हैं, इनकी सिमिलैरिटीज क्या हैं. द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनालिसिस मॉडल. द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज स्ट्रक्चर्ड एंड फॉर्मलाइज्ड टू प्रोड्यूस एनालिसिस मॉडल. बेसिकली जब हम रिक्वायरमेंट्स को एक प्रॉपर वे में रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन मींस कि अब हमने रिक्वायरमेंट्स को एक प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट कर लिया है. सो जब हम रिक्वायरमेंट्स को एक प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, दैट इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. हम उसको स्ट्रक्चर करके और उसको जब हम डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, सो दैट इज आवर एनालिसिस मॉडल. बेसिकली वही रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों इक्वल हैं, दोनों की रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट है, दोनों का वे डिफरेंट है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन जो दोनों ने रिप्रेजेंट करनी है वो दोनों के केस में सेम होती है. सो इट डिफर ओनली इन द लैंग्वेज एंड नोटेशन दे यूज. ठीक है, लैंग्वेज और नोटेशन का फर्क है. जो स्पेसिफिकेशन है वो लैंग्वेज की फॉर्म में होगी, जैसे हमने रिक्वायरमेंट्स को लिखा था पहले रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की फॉर्म में, तो लैंग्वेज की फॉर्म में. और जो एनालिसिस मॉडल है वो एक्चुअली डिफरेंट नोटेशंस को यूज करते हुए, जैसे डिफरेंट डायग्राम्स हैं तो हर एक की नोटेशन डिफरेंट है, उसको यूज करते हुए हम डायग्राम बनाते हैं. वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एंड डेवलपर्स. वे ऑफ कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट एंड डेवलपर्स, अगेन दोनों ही वेज ऑफ कम्युनिकेशन है क्लाइंट और डेवलपर्स के. represent accurately the external aspects of the system. Basically ये इस केस में हम कह सकते हैं कि जो भी सिस्टम
एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स का मतलब ये है कि अगर यूजर कोई इनपुट देगा तो उसके अगेंस्ट क्या आउटपुट आनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, अगर यूजर रजिस्ट्रेशन के बटन पे क्लिक करता है तो बैकएंड पे रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए. सो दैट इज एक्चुअली एक्सटर्नल बिहेवियर और एक्सटर्नल एस्पेक्ट ऑफ द सिस्टम. ठीक है, तो सिस्टम जो हमारा है या जो स्पेसिफिकेशन है और एनालिसिस मॉडल है, दोनों रिप्रेजेंट करते हैं एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स को. ठीक है, दोनों ही वे ऑफ कम्युनिकेशन भी है, दोनों की इंफॉर्मेशन सेम है, नॉलेज या आप कह सकते हैं रिप्रेजेंटेशन सेम है जैसे इंफॉर्मेशन, लेकिन रिप्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट है. ठीक है, सो बोथ अकर कॉन्करेंटली एंड आइटरेटिवली. आइटरेटिवली का मतलब है पहले हम स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, इसके रिजल्ट में मॉडलिंग करेंगे. ठीक है, जब मॉडलिंग हमें लगेगा कंप्लीट हो गई है तो ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा से स्पेसिफिकेशन लेंगे और फिर उसकी रिक्वायरमेंट मॉडलिंग करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, अब इसको डायग्राम को देख लेते हैं. दिस इज बेसिकली एक्टिविटी डायग्राम, यूएमएल एक्टिविटी डायग्राम, जिसके थ्रू हम एलिसिटेशन और एनालिसिस इन दोनों चीजों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ठीक है, एलिसिटेशन की अगर हम बात करें, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की, तो इसमें पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट आती है. प्रॉब्लम स्टेटमेंट का मतलब ये है कि अभी हमने कोई सॉफ्टवेयर नहीं बनाया है और हमारा कस्टमर ये कहता है कि हमें कोई केस स्टडी देगा या कोई इशू है या कोई सिनेरियो है जिसका बेसिकली हमने मॉडलिंग करनी है, स्पेसिफिकेशन लिखनी है. सो वो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के रिजल्ट में सबसे पहले हमें जो काम करना होगा दैट इज टू एलिसिट रिक्वायरमेंट्स, टू गैदर रिक्वायरमेंट्स. अब मैंने रिक्वायरमेंट्स गैदर करने के लिए सेशंस किए, इंटरव्यूज किए, क्वेश्चनेयर्स और वट एवर रिक्वायरमेंट गैदरिंग टेक्निक जो आप यहाँ पर यूज करें, उस टेक्निक के रिजल्ट में आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स आएंगी. दैट रिक्वायरमेंट्स विल बी कैटेगराइज इनटू डिफरेंट टाइप्स, जैसे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके अलावा डोमेन रिक्वायरमेंट, डिफरेंट टाइप्स है रिक्वायरमेंट्स की जिसको हमें पता है, उसमें कैटेगराइज करते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स को. सो ये दो डिफरेंट चीजें बनी हुई है. एक रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का पैकेज बना हुआ है, इस पैकेज के अंदर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से रिलेटेड डिफरेंट चीजें. ठीक है, और दूसरा पैकेज हमने एनालिसिस मॉडल का बनाया हुआ है और एनालिसिस मॉडल के अंदर डिफरेंट एनालिसिस मॉडल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन से जो इंफॉर्मेशन हमें मिली, एक्चुअली जो रिक्वायरमेंट्स थी, उनको हमने एक पैकेज के अंदर विच इज एक्चुअली रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन पैकेज, उसमें हमने डॉक्यूमेंट कर दिया, जिसकी डिफरेंट टाइप्स लिख दी हमने, नॉन फंक्शनल लिख दी, फंक्शनल लिख दी और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स हमने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के अंदर लिख दी. नेक्स्ट इज एनालिसिस मॉडल. ठीक है, अब रिक्वायरमेंट सोलिसिटेशन से इंफॉर्मेशन जो आई उससे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बनी, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी बनी और पैकेज में बाकी चीजें रिप्रेजेंटेड नहीं है और भी हो सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ लिखी. इसके बाद इससे कुछ इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट की, यानी उस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट हुई हुई थी उसको देखते हुए हमने एक मॉडल बनाया, एनालिसिस के रिजल्ट में मॉडल बनाया. दैट वुड बी डायनामिक मॉडल भी हो सकता है, दैट कुड बी एनालिसिस ऑब्जेक्ट मॉडल, दैट कुड बी एनी अदर मॉडल जो कि हम एनालिसिस के रिजल्ट में बनाते हैं. ठीक है, तो ये बेसिकली दो डिफरेंट चीजें हैं जिसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं इंफॉर्मेशन को या रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन को. एलिसिटेशन कॉन्सेप्ट्स में ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग, जो हम रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग कर चुके होते हैं, तो ये डिफरेंट चीजें हैं जो हम देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स को इस तरह होना चाहिए. डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन से रिलेटेड जो हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट वन इज फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, देन नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, देन कंप्लीटनेस, कंसिस्टेंसी, क्लैरिटी एंड करेक्टनेस. ये 4 एट्रीब्यूट्स मस्ट होने चाहिए. Then is realism, verifiability and traceability, greenfield engineering, re-engineering and interface engineering. ठीक है, so next lecture में इंशाल्लाह हम elicitation concepts को कंटिन्यू करेंगे. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हम देख लेते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक केस स्टडी देखेंगे जिससे इन रिक्वायरमेंट्स टाइप को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे. Functional requirements describe the interactions between the system and its environment independent of its implementation. ठीक है, so functional requirements का मतलब ये होता है कि आपने सिस्टम और environment के दरमियान में डिपेंडेंसी बतानी है, इंटरेक्शन बताना है. इम्प्लीमेंटेशन क्या है, कैसे होगी, इससे हमें कोई कंसर्न नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि फंक्शनल रिक्वायरमेंट, लेट्स से मैं कहती हूँ एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट डिस्कस करते हैं. लेट्स से मैं कहती हूँ कि registered student can view marks summary. अब ये एक रिक्वायरमेंट है, रजिस्टर्ड स्टूडेंट कैन व्यू मार्क्स समरी. ठीक है, ये एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन अब इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट में
क्या प्लेटफॉर्म यूज हुआ है, कौन सा मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज, मीन्स के प्लेटफॉर्म मोड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यूज हुआ में कोई मतलब नहीं है कि ये रिक्वायरमेंट किस प्लेटफॉर्म में बनी होनी चाहिए, ठीक है, इस चीज से हमें कोई कंसर्न नहीं है, बस हमें इस चीज से कंसर्न है फंक्शनल रिक्वायरमेंट में कि ये काम होना चाहिए, ठीक है। सो द एनवायरमेंट इंक्लूड्स द यूजर इन एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम विद विच द सिस्टम इंटरैक्ट्स, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें एडेड नहीं है, एनवायरमेंट एडेड नहीं है, कौन सा यूजर बेसिकली इंडिपेंडेंस, इसमें इन्वायरमेंट तो आता है कि यूजर है, कौन सा सिस्टम है जिसके साथ इंटरेक्ट करना है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कौन सी लैंग्वेज है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, ये हमने रिप्रेजेंट नहीं करना होता। दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में फर्ब्स मॉडल, फर्ब्स प्लस मॉडल डिस्कस करेंगे और एक केस स्टडी से हम रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल, नॉन फंक्शनल एंड डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। सो टिल देन, अल्लाह।